ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਂਦਾ ਕਟੈ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨਾ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਂਦਾ ਕਟੈ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨਾ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੇ ਰਾਖੇ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਭਗਤ ਵਛਲ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ। ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਬੈਠੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਮਾਇਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਬਦਕਿਸਮਤ ਭੈਣਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਫੜ ਕੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਮੰਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਨੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਕੈਸੀ ਹੋਵੇ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਸਲੀਪਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹ, ਭਾਵੇਂ 5000 ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੱਪਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੂਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ 5000 ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋੜਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਘਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਜੋੜਾ ਘਰ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਜੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਅਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਘਟ ਆਈ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਪਾਣੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਵਪਾਰੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਪਰਚੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਪੜੋ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵੇਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੇਲੇ। ਕਦੇ ਅੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਟ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। मुक्ति कौन दे सकता जी? जेड़ा आप मुकत होवे। बाबा जी कहते ने आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। जेड़ा आप ही मुकत नहीं, वो तुहानू मुकत किथों करेगा? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਹੀ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ 10-10 ਰਾਈਫਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਠਾਂ ਠਾਂ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੀ ਬਚਾਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ऐसे गुर को बल बल जाइए। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आज जो ऐसे गुरु की गल होवे ना,
ते अखां दे अगे निशाना केवल एक ही होवे, धन धन श्री गुरु, धन धन श्री गुरु, दूजा ना होवे। एक बेनती करदा होना, जदों पूजा करदे हो, जदों बाणी पढ़दे हो, जदों वाहिगुरू गुरमंत्र दा जाप करदे हो, सिख दे जीवन विच पूजा वेले कोई दूजा ना होवे। एक नूं आसन ते बिठाना, दूजे नूं नहीं। ते मंगना भी एक कोलों ही, थां थां ते धक्के नहीं खाने। गुरु ने सानू धक्कियां तो बचाया है। बेनती करां, कदे गुरु कोलों मंगण दी सानू जाच आ जावे ना, ते सच जानना साडे सारे भंडार भरे जा सकते हैं। असी खाली क्यों रह जाने आ भी सानू अजे मंगण दी जाच नहीं। ते दास एक बेनती करदा हुंदा है, किते 3 दद्दे मंग लो गुरु ग्रंथ साहब दे चरनां च। 3 दद्दे, जब भी कुछ मांगो तो सही मांगो। सही का मतलब है केवल वही मांगो। कभी ये मांगा, कभी वो मांगा, इससे तो अच्छा है कि नहीं मांगो। धन गुरु ग्रंथ साहब जी, आपके चरणों से जुड़ा रहूं सदा के लिए। जब भी दुआ को हाथ उठे तो यही मांगो। किते मंगण दी जाच आ जावे, 3 दद्दे मंग लेना। हुण कईयां ने कहना भी 35 अखरी विचों दद्दा ही क्यों लवे? गुरमुखी दी 35 अखरी ते भाई साहब कहंदे 3 दद्दे मंग लो। दद्दा पता क्यों मंगना है? जिहदे अगे असीं हथ जोड़ के खड़े आ, कौन है? दद्दे तो दाता। दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार। ते दिंदा किन्ना जी? दिंदे टोट ना होवे, अगणत भरे भंडार। दाते कोलों मंगना। एक दाता, सब जगत भिखारी आ। दद्दे तो दाते तो मंगना है, ते जिहदे कोलों मंगने आ ओह ते दद्दे तो दाता। ते असीं कौन आ जी? दद्दे तो दीन, भिखारी, मंगते, बैगर्स, जाचक। दीन, हम दीन, तुम जुग जुग दाते। शब्दे देह बुझाई। मंगण वाला दद्दे तो दीन, देण वाला दद्दे तो दाता। ते हुण मंगना की है जी असीं दाते कोलों? दद्दे तो दान। मंगण वाला दद्दे तो दाता, मंगण वाला दद्दे तो दीन, देण वाला दद्दे तो दाता। ते जो मंगना वो दद्दे तो दान। ते फिर क्यों ना 3 दद्दे मंग लईए? आ प्रबंधकां वल्लों, मेरे कीर्तनीय वीरां वल्लों ये दीवान कराए सफल हो सकते ने। गुरु दे कीर्तियां दा कीता कीर्तन सफल हो सकता है। दास गरीब दा बोलिया सफल हो सकता है। साध संगत जी, अज किते गुरु ग्रंथ साहब कोलों सानू 3 दद्दे मंगण दी जाच आ जाए। केवल बोल के लंघा जिन्ना को समा तुसां बख्शिया। पहला दद्दा, भावना दीयां डायरियां खोल लो ते शरदा दी कलम नाल नोट कर लो, बड़ा काम आएगा। क्योंकि शरदा जदों तक साडे जीवन विच नहीं, खेड नहीं जे बनेगी। दास कई बार एक बेनती करदा हुंदा है, गुरु घर आउण वाले हो, नमस्कारां करन वाले हो, रोज तुसी नितनेम करदे हो, मुबारक है। गुरु घर आउंदे हो, मुबारक है। दसवंध कटदे हो, मुबारक है। हथी सेवा करदे हो, मुबारक है। पर जदों तक शरदा दा धन पल्ले नहीं ना पिया, ते दास एक बेनती करे, शरदा बिना नहीं सरदा। जदों तक शरदा नहीं, खेड नहीं जे बनदी। शरदा दीयां डायरियां खोल के भावना दी कलम नाल लिख लो, जिंदगी च काम आएगा। पहला दद्दा। ये हुण 3 दद्दे ऐसे ने, संसार दा कोई सुख नहीं जेड़ा इन्हां 3 दद्दियां विच ना आ जावे। पहला दद्दा, दरगाही दाता। हुण दरगाही दाता की ने? जिन्हां दातां दे सदके साडी धुर दरगाह दे नाल सांझ पैंदी है। दरगाह दे नाल, गुरु दे चरनां नाल साडी सांझ पैंदी है। दरगाही दाता की ने? हे सच्चे पातशाह, हे मेरे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब पिता जी, हे मेरे सोहने दाता जी, किरपा करो मेरे जीवन में अमृत दी दात बख्शो। मेरे जीवन में अमृत बाणी नाल प्यार बख्शो। मेरे जीवन में अमृत वेले दा जागना बख्शो। अमृत वेले दा जागना जीवन में बहुत जरूरी जी। ते सच कह दिया, जिन्हां दे पल्ले अमृत वेले दा धन है ना, ਉਹ गुरु के
तो बख्शे जा सकते हैं, बाकी तो गल्लां ही। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप दे विच अमृत वेले के संबंध में बहुत उदाहरण दिते गए ने, थां थां ते एग्जाम्पल दिते गए ने, किते कोई साडी मत विच पै जावे। दरगाही दातां सतगुरु अमृत वेले दे जागने बख्शो, इशनान बख्शो, कुछ समा चौंकड़ा मार के वाहिगुरु गुरमंत्र दा जाप करां। सच्चा पातशाह तेरियां 5 बाणियां बड़े प्यार नाल पढ़ा, तेरे चरनां विच मेरी हाजरी लगे। ओ दाता जी 5 बाणियां दा भावें भोग पै जावे, पर मेरे अंदर तेरे नाम दी प्यास लगी रहे। केड़ी अवस्था है जी? तोर भजन की रहे प्यासा, ए प्यास सदा लगी रहे। 5 बाणियां पढ़ा ते सुखमनी पढ़न दा चित करे, सुखमनी पढ़ा, शब्द हजारे पढ़न दा चित करे, आसा की वार पढ़न दा, गुरु घर जाके सुनन दा चित करे। यह है दरगाही दाता सतगुरु बख्शियां दे मेले, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। सही प्यारे मेल, सही प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। आ जेड़े 3 दद्दे मंगण दी गल चली है ना, तुसी जेड़ी पंथक अरदास निता प्रति गुरु ग्रंथ साहब दे चरनां विच हाजरी लवाउंदे हो, इहदे विच तुसी रोज 7 दान मंगदे हो। वो दान केड़े केड़े ने तुहानूं याद होणगे, रोज मंगदे हो ना। ये 7 दे 7 दान दरगाही दाता नाल संबंधित ने। की मंगदे हो जी रोज? सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाहत दान, भरोसा दान, ते फिर की मंगदे हो? दाना सिर नाम दान। ये 7 दे 7 दान ये तुरदरगाह दे नाल साडी सांझ पाउंदे ने। ते अरदास दे विच असीं एक चीज होर मंगने आ, ये भी दरगाही दाता नाल संबंधित है। की मंगने आ रोज? सिखां दा मन नीवा, मन नीवा। मैं क्या थोड़ा उच्चा बोलो, हाजरी लग जाए सारियां दी। मन नीवा मत उच्ची, जिन्हों अंग्रेजी विच कहंदे ने सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। मन नीवा निमरता, गुरमत हृदय गरीबी आवे। दिल्ली वाले हो झात मारिए अपने अपने हिरदे दे विच, किन्ना कु साडा मन नीवा। मंगदे रोज आ मन नीवा मत उच्ची, किन्ना कु मन नीवा। जरा जी कोई साडे सामने गल पुठी करके तो वेखे, फिर पता लगता है मन किथे पहुंचे साडा। मंगदे आ मन नीवा मत उच्ची, पर कम पुठाई है। मन उच्चा ते मत नीवी हो गई। हालात की ने? आ जिहड़ी उंगल है ना, जदों साडे जीवन में क्रोध प्रगट होएगा, जदों साडे जीवन में हंकार प्रगट होएगा, सब तो पहला यह उंगल वरती जाती है। जदों गुस्सा आएगा, जदों हंकार आएगा, बंदा यह उंगल वरतदा है। तैनूं पता मैं कौन? यह उंगल, यह हंकार की निशानी जे। तैनूं पता मैं तेरा की हाल कर देना। सस्सां थोड़ा ज्यादा वरतदियां नूहां दे अगे, आण दे मुंडे नूं घट भावें कुड़ियां भी नहीं, चलो मैं इस पासे ना जावां। यह उंगल बड़ी वरती जाती है। जदों किते क्रोध प्रगट हो जाए, किते हंकार प्रगट हो जाए, ते अखां बंद करके मंगने आ मन नीवा। ते मन चढ़िया किते होर, मन तो मैगल होए रहे हो। मन ते हाथी वर्गा। ते भगत कबीर जी कहंदे ने मुकद द्वारा संतरा, राई दसवें भाए मन तो मैगल होए रहे हो, निकसे क्यों के जाए हाथी वर्गा। आप कहने है कोई मेरे वर्गा? अंग्रेजी दे विच 26 अल्फाबेट्स ने। संसार दे विच हजारां भाषावां बोलियां ते लिखियां जांदियां ने, पढ़ियां जांदियां ने,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ 9th ਐਲਫਾਬੈਟ ਆਈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੀਕ ਪਾ ਦਿਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਆਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਸ। ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ABC ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਲਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੀਕ ਪਾ ਦਿਓ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ। ਬਚਪਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਬੁਢਾਪਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਮੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਅਗਲੇ ਪਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ, ਰਾਮ ਅਜੇ ਮੈਂ ਜੀ ਵਸਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਪਿਆ ਟੇਕਣਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ में रहा ना हूं, जब आपा फरका मिट गया, जत देखो तत तू खेड़ता इत्थे खड़ी गुरमत दी। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮੈਚ ਹੀ ਫਸੇ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਉਂਗਲੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘਰ ਬਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੇਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਵੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਕਣਾ ਵਿਖਾਣੇ ਆ, ਆਕਣਾ। ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੇਡ ਏ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ, AC ਕੋਠੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਖੱਚਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਮੰਗਦੇ ਰੋਜ਼ ਆ, ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ। ਮਨ ਨੀਵਾ ਕਿੰਨਾ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਗੁਰਮਤ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ, ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬੀਬੀ ਦੂਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤਾਂ 200 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਤੇ 40 ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੜਨਗੀਆਂ ਮਾਈਕ ਅੱਗੇ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਏ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 50-50 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 4 ਮਿਲੇ 64 ਖਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 4 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 4 ਮਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? 64 ਖਿਲੇ। ਦੋਵਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 32 ਦੰਦ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 4 ਮਿਲੇ 64 ਖਿਲੇ, 20 ਮਿਲੇ ਕਰ ਜੋੜ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀਆਂ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀਆਂ 10 ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ? 20। ਜੋੜ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਫਿਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ।
हुण 20 उंगलां जदों हो जांदियां सन 10 ते 10 20 ते गज के की बुलाउंदे सन जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 4 मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोड़, गुर सिख से गुर सिख मिले खिड़ गए 7 करोड़। सियाणे कहंदे ने सीस तो लैके पैर दे अंगूठे तक बंदे दे शरीर ते 7 करोड़ एप्रोक्सीमेट रोम हुंदे ने। ए रोम वेखना किहड़े, जेड़े रोम साड़ियां भैणां प्लकिंग करके, थ्रैडिंग करके, वैक्सिंग करके, ब्यूटी पार्लर ते भांत भांत दे हीले वसीले करके डस्टबिन दे विच सुट के आ जांदियां ने। ए रोम अखां बंद करके पढ़दियां ने, उच्चा उच्चा पढ़नगियां, मेरे वीर भी पढ़नगे। राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोए। ओ सिख पंथ दिओ वारसो, अपने अंदर झात मार के वेखो, आप असी गुरु तो आकी होए पे हां ते इत्थे दावा करदे हां आकी रहे ना कोए। असी तो आप आकी होए पे हां जेड़े गुरु दे बचन नूं नहीं मरदे। करदे की हां? सिक्खी कमाउण दी चीज है, सिक्खी गल्लां दा नाम नहीं। ड्राइंग रूम दे विच बैठ के डिस्कशन करना, स्टेज तो बोलना सिक्खी दे बारे बड़ा आसान है। गुरसिक्खी बारीक है। खंडे धार गली अत पीड़ी, खंडे दी धार ते तुरना सिक्खी है। असी पैसे दे के ब्यूटी पार्लर ते आप ये काम कराउने आ। माफी चाहो ना मेरियो भैणो, मेरियो धीओ, मेरियो माताओ, मेरे वीर बुजुर्गो, अज असी कर की रहे हैं? लाणी सी साइयां नाल, ला बैठे नाइयां नाल। लाणी सी साइयां नाल ते ला बैठे नाइयां नाल, ते इत्थे कहने आकी रहे ना कोई। सब तो पहले तो असी आप आकी हां। अरदास करना है सतगुरु बख्शिश करो, सानू सिक्खी दे मार्ग ते तुरन दी इजाजत बख्शो। पहला दद्दा दरगाही दाता, समा इजाजत नहीं देंदा बहुती डिटेल च जावां। दूजा दद्दा, पहला दद्दा दरगाही दाता जिन्हां दे सदके साडी धुर दरगाह दे नाल सांझ पैंदी है, ते दूजा दद्दा दुनियावी दाता। जीवन जिउण दे लई दुनिया दे विच कई प्रकार दीयां लोड़ां ने। घर परिवार, मकान, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, चंगा बिजनेस, चंगी सर्विस, हर चीज़ की लोड़ है। दुनिया विच जीवना है ना। दुनियावी दातां ये भी असी अपने बापू कोलों मंगनियां ने। धी पुत्र अपने प्यो कोलों ना मंगे कित्थे जावे दसो? दुनियावी दातां भगतां ने भी मंगियां। भगतां ने भी गुरु पूरे कोलों, निरंकार कोलों मंगी है। दाल सीधा मांगो, घीओ, सारी ग्रोसरी मंग ली, सारा राशन मंग लिया भगत अन्ने ने। दाल सीधा मांगो घीओ, हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया छादन नीका, अनाज मंगो 7 सीका, गऊ भैंस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, घर की गीहन चंगी, जन धन्ना लेव्या मंगी। मैं हैरान होना जो पंक्तियां पढ़ना। इतिहास कहता है कि भगत धन्ना चिट्टा अनपढ़ कदे किसी स्कूल नहीं गया। खेती करने वाला एक साधारण जिहा जट किसान, पर जदों बाणी पढ़दे आ गुरु ग्रंथ साहब दे विचों ते मैनूं पता नहीं क्यों इउं लगदा है कि भगत धन्ने वर्गा विद्वान ही कोई नहीं। भगत धन्ने पता नहीं किहड़ी यूनीवर्सिटी विचों पढ़ाई कीती है, मैनूं समझ नहीं आई। दाल मंगी, घ्यो मंगिया, आटा मंगिया, सराणा मंगिया, तुलाई मंगी, घोड़ी मंगी, जुत्ती मंगी। ये नहीं कहा भी मैनू चंगी नहीं, दे दे। पर जदों जनानी मंगी कहना घर की गीहन चंगी। इत्थे चंगी क्यों कहना पिया? क्योंकि भगत धन्ने नूं भी पता है औरत दे हाथ विच मालक ने इन्नी ताकत बख्शी है, जे औरत चंगी होएगी ते परिवार आपे सुधर जाएगा। जे औरत नितनेम करने वाली होएगी, उस दी कुख चो पैदा होने वाले बच्चे भी नितनेमी होणगे। जे औरत सारे दिन ब्यूटी पार्लर ते बैठी रवे, सस भावें फुलके नूं तरसदी होवे, पानी नूं तरसदी होवे, ते फिर घर दे विच खुशियां नहीं होणगियां, नरक बनेगा। इस करके भगत धन्ने ने कहा घर की गीहन चंगी। बीबीओ, भैणों, धीओ, माताओ, तुहाडे ते पंथ दी बड़ी वड्डी जिम्मेवारी जे। मैं क्या गल गुरु ग्रंथ साहब के चरणों च बह के दावे नाल कह दिया, जे तुसी चंगियां बन जाओ, वैसे तुसी चंगियां हो, तुहाडे ते किरपा है, पर फिर बेनती करदे हां
जे तुसी चंगियां बन जाओ, जे तुहाडे जीवन में गुरमत का वासा हो जाए ना, ते ऐस पैसे बैठे हुए मेरे वीर बुजुर्ग नौजवान बच्चे आने वाले समय में अमृतधारी होणगे। जे तुसी अमृत छकिया ताई तां बच्चियां नूं अमृत छकण दी प्रेरणा दिओगे ना। बच्ची जवान होके गुत मना के घर आ जाए, मां आखे धीए की कर आई है, बच्ची ने कहना मां मैं वही कीता जो सारी उम्र तैनूं करदियां वेखिया। मां आप सिक्खी दा बूटा पुट देंदी है अपने घरों, जदों सिक्खी तो बेमुख हो जाती है। जे मां बेमुख है तो उस घर दे विच सिक्खी दा बूटा लगना औखी गल है। इसलिए यतन करो मेरियो माताओ, मेरियो भैणों, मेरियो धीओ, तुसी समाज दियां सिरजनहार हो। तुसी गुरु दे प्रति कदे बेईमान ना होना, तुसी सदा ईमानदार रहो। मैं गुरु की कृपा सदका एक दावा कर दिया, तुहाडे परिवारां दे विच सिक्खी दी खुशबू सहज सुभाए आउण लग पेगी। जदों बचपन तो बच्चा उस माहौल विच वड्डा होएगा, जदों बचपन तो अपनी मां नूं अपने पिता नूं पाठ करदियां बाणी पढ़दियां वेखेगा। दुनियावी दातां जीवन जिउण दे लई जरूरत दियां लोड़ां, पर ध्यान रखना इन्हां लोड़ां विच असीं इन्ने खचत ना हो जाइए कि दाते नूं भुल के दातां विच रुल जाइए। दात प्यारी विसरिया दातारा, ये साडे जीवन विच कदे अवस्था प्रगट ना होवे, ये अरदास करना। लोड़ अनुसार गुरु कदी सानू भुखा नहीं जे मरण देंदा, ध्यान रखना, क्योंकि गुरु सतगुर सबना दा भला मनाएदा। जल में जंत पाइन तिन्ना पी रोजी दे, वो सानू भुखा नहीं जे मरण देंदा, उहदी ड्यूटी है सब नू रिजक देण दी। वो गल वखरी है भी वो सानू पेट भरन लई देंदा है ते असीं पेटियां भरन विच रुझ गए। दुखी तां हुंदे आ जदों असीं पेटियां भरन वाल रुझ जाने आ, फिर भरा दा भी हक मार, उहदा भी हक मारे, कुछ करदे ही आ। ते साध संगत जी, गुरु घर आउण दा मकसद सी असीं गुरु दी गोदी दा निगमाणी है। असीं गोदी नूं छड्ड के गदियां वाल टुर पए। ये सब तो वड्डा दुख है साडे समाज दा, साडे पंथ दा। माणना सी सुख गुरु दी गोदी दा, असीं गोदी विचों उठ के ते गदियां वाल भज पए। प्रधानगियां ते होर चौधरां ने साडे पंथ दा की हाल कीता। सिख ही सिख दी पग नूं हथ पा रिहा है, एक दूजे तो अगांह निकल जाण दी कोशिश दे विच अज साडे पंथ विच भरा मारू जंग। मैं एक बेनती करां, ऐसे प्रचारक जे दास भी उन्हां दी गिनती च आंदा होवे ना, कदे ना सदिया करो अपनी स्टेजां ते। जेड़े कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, जेड़े भुलेखे पाउंदे ने, डट के बाणी पढ़ो, डट के नाम जपो, डट के सिमरन करो, अमृत वेले की संभाल करो, गुरु के चरणों नाल जुड़ो। गुरु का उपदेश गुरु ग्रंथ साहब विचों प्रगट होंदा है, किते बाहरों समझण दी लोड़ नहीं। जे कोई गल समझ नहीं आउंदी, किसी विद्वान कोलों किसी बुजुर्ग कोलों पुछ लैण विच कोई हर्ज नहीं। पर जेड़े हर वारी प्रचारक कोई नवीं नवीं मर्यादा दस जांदे ने, दास एक बेनती करां, मर्यादा वड्डी है, बंदा वड्डा नहीं। असीं बंदियां ने मगर टुर पे, जेड़ा आउंदा अपने मगर ला जांदा है। जिंदगी बीत गई बंदियां ने मगर लग्या, कदे गुरु दे मगर भी लग के वेखो। संसार का कोई ऐसा सवाल नहीं जिहदा जवाब गुरु कोल ना होवे। आ एक पंक्ति सामने आ गई, धन गुरु ग्रंथ साहब जी का बचन है, तुहानू कंठ होएगा। रोज पढ़ने राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। कदे विचार करना, भावें जिंदगी बीत गई ये पंक्तियां पढ़ते हैं। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे 15 भगतां दी बाणी है, 11 भट्टां दी बाणी है, 6 गुरु साहबां दी बाणी है, गुरु दे 4 प्यारे सिखां दी बाणी है। पर जदों उदाहरण देण लगे ने गुरु साहब, राम जपण दी प्रेरणा देण लगे ने, ते कहंदे किवें जपो, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ना भगत ध्रुव की बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी दर्ज है, ना भगत प्रहलाद की बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी दर्ज है, पर उदाहरण उन्होंने दी गई। भगत कबीर की एग्जाम्पल नहीं दी, भगत रविदास की, भगत फरीद की, भगत धन्ने की, भगत सैन की एग्जाम्पल नहीं दी एग्जाम्पल ध्रुव ते प्रहलाद की। आखिर दे पिछे लॉजिक की है, सिद्धांत की है मेरे गुरु का, इनू विचार के फिर समाप्ति करा। इहदे पिछे बड़ा बड़ा सिद्धांत काम कर रहा है। जदों पढ़ते हैं ना, राम जपो जी ऐसे ऐसे,
राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। इत्थे उदाहरण दिती भगत ध्रुव ते भगत प्रहलाद दी। भगत ध्रुव दी उम्र इतिहास दे विच जिक्र आउंदा है लगभग 5.5 वरे, जदों उहनूं राम दे नाम दा ज्ञान होया। भगत प्रहलाद की उम्र लगभग 6 वरे, जदों उन्होंने भगती वाले पासे तुरन की प्रेरणा मिली। हुण हैरानी हुंदी है, भावें गुरमत दे विच उम्र का कोई जिक्र नहीं, उम्र की कोई गल नहीं, पर राम जपण की प्रेरणा देण वेले इन्हां दो बच्चियां की गल क्यों कीती? इत्थे सानू गुरु साहब एक समझाना चाहते हैं, जदों परमेश्वर के मार्ग से टुरना करिए, जदों भगती के मार्ग से टुरना करिए, बच्चे बन जाइए। क्योंकि बच्चा होंदा है न कलंक न कपट, बच्चा बहुता चतर चलाक नहीं, इसलिए कह दिता जाता है भी ये बच्चे रब का रूप होंदे ने। क्यों होंदे ने? बच्चे अंदर कोई दुनियावी चतुराई नहीं होंदी, बड़ा साफ सुथरा जहन वाला, साफ सुथरे दिल वाला बच्चा। ते इत्थे सानू समझाया कि तैनू बाहर बड़ी चौधर मिलती होवे, तैनू लखपति करोड़पति अरबपति होने करके बड़ा सत्कार मिलता होवे संसार दे विच, लोकी शाह जी कहंदे होण, किसी ओहदे करके तैनू प्रधान जी कहंदे होण, सकत्तर साहब कहंदे होण, किसी विद्या करके गुरु दा कीर्तनियां करके या प्रचारक करके विद्वान करके नमस्कार करदे होण, बहुता चौड़ा ना हो जाई। जे किते सोसाइटी दी कोई मैंबर कोई प्रधान कौर मेरी गल सुनदी होवे, बाहर बड़ी प्रधान जी होवे, बाहर चौड़े नहीं हो जाना, इत्थे जदों भी आउणा बच्चे बन के आउणा। बाहर भावें बड़ी चौधर बड़ी जय जयकार हुंदी होवे, गुरु दे चरनां विच बच्चे बन के रहना। एक बेनती करा, जदों तक बच्चे रहोगे तां तक बच्चे रहोगे, ते जे इत्थे आके वड्डे हो गए, इत्थे आके मैं नाल आ गई, चौधरपुणा नाल आ गया, ते बेनती करदे हां जदों तक बच्चे रहोगे तां तक बचे रहोगे, ते जदों वड्डे हो गए उस दिन वड्डे गए। पेड़ मुड़ा हूं कट्टिया तिस डाल सुकंदे, जेड़ा दरखत जड़ नालों वढ़िया जावे ना, उस नूं कदे पत्ते हरियावल विच प्रगट नहीं हुंदे, उस नूं कदे फुल नहीं लगदे, उस दे फुल्लां 'च कदे खुशबू नहीं आंदी, उन्हों कदे फल नहीं लगदे, उस दरखत दी छां दा भी आनंद नहीं माणिया जा सकदा। जेड़ा जड़ नालों वढ़िया गया, उस दी लक्कड़ केवल बालण दे काम आउंदी है। जदों तक बच्चे रहोगे तां तक बचे रहोगे, जिस दिन वड्डे हो गए उस दिन वड्डे गए। कुछ नहीं जे रहना, इस करके हौमे तो बचना, हंकार तो बचना, ईगो तो बचना, आई तो बचना, मैं तो बचना। सच जानना, जिस दिन मैं तो बचन की जांच आ गई, जिंदगी विच तू प्रगट हो जाना है। उस दिन जिंदगी दे विच ओ रंग लग जाना है, जिस रंग नूं उड़ीकदे आ, जिस रंग दी रोज अरदास करने आ, दातिया किते ए रंग मैनू भी लग जावे। लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा, मैला कदे ना होवई नह लागे दागा। तीजा दद्दा केवल बोल के लंघा दास दा समा 1 मिनट हो रह गया। पहला दद्दा जे दरगाही दाता, दूजा दद्दा जे दुनियावी दाता, ते तीजा दद्दा इन्ना इंपोर्टेंट जे तीजा दद्दा मंगण दी जांच ना आई ते पहले 2 दद्दियां दा आनंद नहीं मान सकोगे। वो तीजा दद्दा की है? दे अरोगता। हुण माफी देना, जे दे अरोग नहीं ते दरगाही दाता दा आनंद किवें माणोगे? जे शरीर ही ठीक नहीं, किवें अमृत वेले उठांगे, किवें इशनान करांगे, किवें चौंकड़ा मारांगे, किवें वाहिगुरू गुरमंत्र दा जाप करांगे ते किवें 5 बाणियां पढ़ांगे? जे दे अरोग नहीं तो दुनियावी दाता का आनंद भी नहीं मान सकते। 36 प्रकार के भोजन डाइनिंग टेबल ते पे होण साडे किस काम दे जे शरीर ठीक नहीं। आ 3 दद्दे जे मंगण की जांच आ गई, संसार का कोई ऐसा सुख नहीं जेड़ा साडे जीवन विच प्रगट ना होवे। गुरु कृपा करे, सतगुर दीन दयाल बख्शिश करन, इसे तरह अपने चरणों नाल जोड़ के रखन। बहुत शुकराने धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे, जिन्हां ने अपने चरणों में बिठा के कुछ क गल्लां दास गरीब की हाज़री लवा के सांझियां करवाइयां ने।
बहुत शुकराने प्रबंधक वीरां दे इस स्थान की प्रबंधक कमेटी मेरे अत सत्कारयोग वीर पंथ दे कीर्तनीय भाई वरिंदर सिंह जी, उन्हां दा समूह जत्था, भाई साहब भाई जगप्रीत सिंह जी जो आप गुरु दे कीर्तनीय ने, इन्हां वीरां ने विचोले बन के दास गरीब नूं इत्थे सद्दा दिता ते रब वर्गियां संगतां दे दीदार कराए ने। ते हुण भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी पटना साहब वाले पंथ दा बहुत रसीलिया कीर्तनियां दा जत्था, इन्हां ने तुहाडे दर्शन करने ने। फिर भाई मनप्रीत सिंह जी ते होर सारियां कार्रवाइयां स्टेज सकत्तर साहब आप जी ने नाल साझियां करनगे। दास वल्लों गुरमत की गल करदिआं कोई जाने अणजाने विच कोई गुरबाणी की पंक्ति पढ़दिआं कोई गलती होई होवे, खिमा दा जाचक हां। फिर कदे समा बनिया तुहाडे दर्शन करांगे। जिथे जिथे फतेह टीवी तुहाडे घरां विच आउंदा है, गुरु की किरपा नाल रोज़ सवेरे 8:30 तो 9 फतेह टीवी ते दास की कथा गुरु की किरपा नाल चलदी है। जे वेखदे हो तो असीस दिया करो, अपने नितनेम विच परपक्क होवो, अपनी अरदास करना, साडी अरदास करना, प्रबंधकां दी अरदास करना, गुरु के कीर्तनियां दी अरदास करना, तां जे गुरु के चरनां विचों असीं खुशियां दे पात्र बन सकीए। भुल्लां बख्श लैना जी, गज वज के फतेह बुलाउणा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले